Today, my name is Achal Sen, and today I came to visit Alam Law Office, and he's a very good friend of me, Muhammad Alam. And definitely, we have some questions how he progressed, how he established his all, because he's so nice person. And whenever I have chance, he always help whenever we need. As you can see, this is his all building. You can see everything is so nice, so beautiful. So definitely we will talk and we will go through everything, how he established, how he progressed. And because he's very kind, whenever we have chance, we know each other almost more than 20 years, but when we have to, we really have a nice time with him. So I will show his building and everything, because people, if you want to do anything, you can progress, but some people make excuses and this. This is Alam Law, and you can see, like this, You can see this office. Wow. So Hi, how are you? جی السلام علیکم عالم بھائی, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. مجھے پتا بہت بیزی ہوتے ہیں. تو عالم صاحب لائر ہیں اور ہم تقریباً ایک دوسرے کو 20 سال سے زیادہ جانتے ہیں, اور میں ان سے امپریس ہوتا ہوں. بلیو می, ایک تو محبت والے, ایک پیار, جب بھی دیکھا ہنستے کھیلتے اور پیار سے ملتے ہیں. اور ابھی بھی میں آ رہا تھا تو بڑا خوش ہو کے آ رہا تھا کہ میں عالم بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. عالم بھائی کچھ بتائیں گے آپ نے کس طرح سٹارٹ کیا, کس طرح اسٹیبلش کیا اور اتنی بڑی امپائر کھڑی کی. نو بڈی کین ڈو لائک دس, اور یہ میں ہمیشہ آپ سے امپریس ہوتا ہوں. تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ Yes, first of all, I'm humbled. Obviously, I'm very proud always. آپ کے فرینڈشپ کا اور ہمارا اتنا زمانہ پرانا تعلق رہا ہے, اور آپ کے ہمیشہ کمپلیمنٹس کا, کہ آپ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے کمپلیمنٹس کا. جو سوال ہے کہ جی اتنا بڑا امپائر, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ امپائر ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑی مہربانی کی, بہت کرم کیا. ماں باپ کی دعائیں, بہن بھائیوں کی دعائیں, سپورٹ جو ہے نا, اور آپ جیسے دوستوں کی دعائیں اور سپورٹ جو ہے نا, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو کمیونٹی ہے اس کا سپورٹ. Obviously being first generation immigrant, یہاں پہ آئے, یہاں پہ then I went to law school, یہاں پہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, کیونکہ وہی ایک صحیح رستہ ہے میرے حساب سے. جو مجھے ایسا موقع ملا, میں سمجھتا ہوں کیونکہ بہت دفعہ بہت سے لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اپرچونیٹی کریٹ کی کہ I was able to go to law school. یونیورسٹی آف ونڈزر سے میں نے اپنا بیچلرز آف لا, JD ڈاکٹر آف جورسپروڈنس کی ڈگری لی. اس کے بعد پھر ٹورانٹو آئے, اور ٹورانٹو میں آ کے پھر کچھ 2-3 سال تک کچھ دوسری فرم کے ساتھ کام کیا, اور الحمدللہ اس کے بعد then I started my own practice, عالم لا. جیسے کمیونٹی میں لوگ جانتے ہیں کہ جی وی اسپیشلائز ان کار ایکسیڈنٹ, سلپ اینڈ فال, لانگ ٹرم ڈسیبلٹی. I can with confidence I can tell you this, we are one of the largest personal injury law firm in GTA. No doubt. کہ ہمارے یہاں جو فرم میں لوئر ہیں 10 لوئر ہیں, employee, so they're not partner, they're not associate, employee. And we have about 63 legal staff. 63 legal staff. So there are 63 paralegal professionals and 10 lawyers. اور الحمدللہ انشورنس انڈسٹری ہمارا نام جانتی ہے. ریپوٹیشن ہماری یہ ہے عالم لا کی یا میری, کہ میرے لیے کوئی بھی کیس چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. میرے لیے وہ جو کلائنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ ہمیشہ ایسے ہی ہے جی, ہمیشہ جو محبت جو آپ کی ہے نا, مسکراتے دیکھا ہے, اور اسی طرح سے آپ ڈیل کرتے. سو نائس آف یو. جی ایبسولوٹلی. سو یہ کچھ انگریڈینٹس ہیں. obviously hard work is very important, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ بہت رہا ہے, اور اس ٹرسٹ کی وجہ سے ہم لوگ یقیناً ایک حد تک ایسے پہنچ گئے جس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. صحیح بات ہے. آج بھی میں 14 گھنٹے کام کرتا ہوں ڈسپائٹ ایوری تھنگ. میں صبح 7 بجے کا آیا ہوں, ابھی رات 10 بجے سے پہلے نہیں جاؤں گا. I love my job, I love what I do.
कि जो कार एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, स्लिप एंड फॉल के, जिसको इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जी यू नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी मनी, वी स्टैंड अप फॉर दोस पीपल, उनके हक के लिए, उनके राइट के लिए खड़ा होता, तो मुझे बड़ा एंजॉयमेंट होता है अपने काम के लिए। तो मैं उस एंजॉयमेंट, जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं ना, तो फिर थकावट नहीं है। मैं रात को 10 बजे भी आप, यानी आप ये सोच लें इस वक्त 12 घंटे हो चुके हैं, पर मैं अभी भी उतनी हशाश बिशाश हूँ जैसे मैं सुबह आया। ये तो मैं यही बात आपसे कहने लगा था कि आपकी इतने माशाल्लाह यंग लगते हैं हमेशा से, जो पहले मुझे और भी ज्यादा यंग लगते हैं और सबसे बड़ी बात है मैंने हमेशा आपको हंसते हैं खुश देखा है। सबसे बड़ी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स ना, हमेशा प्यार से मिलते हैं। यहाँ पे लोग होते हैं जरा थोड़ा सा ऊपर चले गए तो बात भी नहीं सही तरह करते, और आप में मैंने देखा जब भी मिले मोहब्बत से, प्यार से, और यही वजह कि यंग और खूबसूरत लगते हैं। ये मेन रीजन भी यही है। और आप किसी जो नई जनरेशन है, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि होता क्या है कि सर्वाइवल इज वेरी हार्ड। हम भी इंजीनियर, यहाँ भी पढ़ा, आगे सब कुछ किया, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी हार्ड टू मेकिंग बोथ एंड मीट जब मैंने सर्वाइवल टाइम। तो आप किस तरह किसी का एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं दो लोगों को एडवाइस, दो ग्रुप ऑफ पीपल को एडवाइस करूंगा। एक तो ग्रुप ऑफ पीपल समझ लें हमारे यंग जनरेशन है, ठीक है। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल वो है न्यू इमिग्रेंट, ठीक है ना, क्योंकि मेरी स्टोरी है एज एन इमिग्रेंट। मैं एक तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो प्रोफेशनल्स इस मुल्क में आते हैं, यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हाँ जी, मुश्किल बहुत है, यानी ये नहीं है कि ये कोई जन्नत है कि जी सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। चाहे आपने जो पढ़ना है, आपके बच्चों के लिए जिंदगी आसान हो जाती है, वो जो पढ़ना चाहे। न्यू इमिग्रेंट जब आते हैं बीइंग अ डॉक्टर, तो आपके जहन में सिर्फ ये होना चाहिए जी, नंबर 1 गोल होना चाहिए, और गोल ये कि जी इफ यू आर अ डॉक्टर इन पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं पे भी, यू डिजर्व टू बी अ डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल इन कनाडा। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आपको एक एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला भी बाज़ दफा आपके लिए आसानियों का रास्ता बनाएगा, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन जरूरी है कि अगर आप डिटरमिन हैं तो इंशाल्लाह नोबडी कैन स्टॉप यू। आपकी डिटरमिनेशन बड़ी जरूरी है। अल्लाह ताला भी साथ देता है कि अगर आपकी अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि जी आपकी अपनी डिटरमिनेशन ना हो, आपका हार्ड वर्क ना हो कि मैं आपको कुछ बना दूं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आपकी अपनी डिटरमिनेशन जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, और अल्लाह ताला आपके रास्ते क्रिएट करेगा। तो ये तो हमारे जो इमिग्रेंट प्रोफेशनल्स आते हैं उनके लिए है कि जी नो मैटर व्हाट, कि यू शुड नेवर सेटल फॉर लेस। नेवर सेटल फॉर लेस का मतलब ये होता है कि आप आगे तो अपने आप को ये ना समझें कि बस जो कोई भी मिल जाएगा काम कर लेंगे, कोई भी प्रोफेशन जो है ना गुजारा हो जाएगा। गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन आप एक टैलेंटेड लोग होते हैं जो इमिग्रेंट, जो स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। तो आपको अपने आप को, अपनी वैल्यू को समझना है और बस डिटरमिन रहना है कि जी मैंने ये करना है। दूसरा जो सेट है ऑफ जो ग्रुप है जिसको मैं समझता हूँ कि एडवाइस की जरूरत है आपके सवाल के हवाले से, वो है हमारे यंग जनरेशन। हमारे यंग जनरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि उनको नंबर 1 कि हमेशा चूज करना चाहिए कि व्हाट दे वांट टू बी। ये ना हो कि जी अब मैं देखता हूँ या आप बच्चों को कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बट व्हाट डू यू वांट टू डू, तो उनका सवाल जवाब कई सालों का अक्सर कई जवाब होता, ओह या आई वांट टू डू दिस एंड दैट, अगर ये नहीं हुआ तो देन आई विल डू समथिंग एल्स। इसका मतलब कोई डिटरमिनेशन नहीं है, कोई फोकस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। एंड देन व्हाट विल हैपन कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर उनको जॉब नहीं मिलती है, फिर वो कुछ और करना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ग्रेड 12 12 जमात, उस वक्त बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट दैट चाइल्ड, बच्चा उसका ड्रीम क्या है, उसको उसी वक्त से काम करना शुरू कर देना चाहिए, उसी की तालीम हासिल करनी चाहिए, और कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कभी भी 2 गोल ना रखें। अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि वी विल डू दिस, अगर ये नहीं हुआ तो विल डू अनदर थिंग, बट यू शुड नेवर लीव 2 ऑप्शंस फॉर यू। फॉर श्योर। मैं अपनी जिंदगी का इस कनाडा में जो बताऊं ना, कि मैं समझता हूं कि जो मेरी सक्सेस में एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वो हिस्सा ये था कि आई नेवर लेफ्ट 2 ऑप्शंस फॉर माय सेल्फ, ओनली वन ऑप्शन। वो कहते हैं तारिक बिन ज़ियाद ने जब कश्तियां जला दी थी, वो इसलिए रखा था कि ऑप्शन ही कोई ना रखो। ऑप्शन सिर्फ यही है कि जी लड़ना है और कॉन्क करना है, या कश्तियां जला दी। बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज मेरा ख्याल है हमारे न्यू इमिग्रेंट्स के लिए भी होना चाहिए कि जी आप जब बहुत ऑप्शन रख देते हैं तो फिर आपके लिए फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अल भाई एक दूसरा ये जैसे मतलब इसको कहते थे ये जो कंट्री है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ होता है। तो अब थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा जैसे अब इन्होंने
बहुत ज़्यादा जी, स्टूडेंट लेके आए, जी। क्योंकि हम भी वो ट्रेनिंग भी करते हैं, तो मैं परेशान होता था कि इनको ABC भी नहीं आती थी, हाउ कम दे आर इन कनाडा। तो थोड़ी सी बोला भी, मैं स्टेज पे भी थोड़ी बात भी की भाई, पॉलिटिकल लोगों से भी बात की, लेकिन पता नहीं सुनते नहीं है। अब हम जब लोग आए तो पता नहीं पढ़े पढ़ लिखे, हाँ, 7 साल पहले इंटरव्यू होते रहे, जी, सारा जी, कुछ फिर आए। हाँ जी। तो ये इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है मिसमैनेजमेंट हुआ है हमारी गवर्नमेंट के साथ। जी, जी। इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जी। आपको याद है जिस टाइम पर आप आए थे जी हमारे जी पे, जी जी जो इकोनॉमिक और स्किल बेस पे जो इमिग्रेंट आए हैं, जी जी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क को। जी जी यहाँ पे डॉक्टर, साइंटिस्ट, लॉयर्स, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, जी जी लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से स्क्रूटनी नहीं किया। जी दे हैव ओपन जस्ट अ फ्लड गेट या फॉर पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड। या नंबर वन, गलत डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गलती हमारे गवर्नमेंट की है। 100%। गवर्नमेंट ने आंख बंद कर लिया कि जी आप बेतहाशा स्टूडेंट और लोगों को वर्क परमिट पर ले आओ। मैं कभी भी किसी वर्क परमिट के खिलाफ नहीं होगा कि अगर कोई क्वालिफाइड, फॉर एग्जांपल, आपने रखे भी बहुत हाँ सारे जी, लोगों को, जी, जॉब भी दी, मेरे जी, सामने दिया। जी जी ऑफ कोर्स। हाँ, तो जो स्किल्ड लोग होते हैं ना, हाँ, चाहे वो स्किल्ड प्रोफेशनल हो, चाहे कुक हो, शेल्फ हो, जी 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 अगर वो जेन्युइन है तो बिल्कुल। आपकी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, और जेन्युइन नहीं है तो फिर इसका मतलब उन्होंने तो फिर यहाँ पे हमारे माहौल को खराब ही करना है, हमारे खराब ही मुल्क के फैब्रिक को, सोसाइटी को खराबी करना क्योंकि मैं तो डील किया ना, क्योंकि मुझे जितना भी वो ट्रेनिंग में ये सब कुछ होता था, जी। अब होता है अभी वो लड़की स्टूडेंट आई तो हस्बैंड के साथ ही फौरन पहुंच जी। गया। अब हमें थोड़ा सा ये होता था कि 80% आप एक कंट्री से देते हो, 20% है, 5% पाकिस्तान जी। से। व्हाई लाइक दिस? तो उसमें ये कि वन जो एक तकलीफ है कि अब वो जैसे बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो उसमें उन्होंने कुछ शॉर्टकट ढूंढ के ना हमें भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। हम तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चले हैं, तो वो अब शॉर्टकट, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द मनी, दैट्स इट। जी। वो एक काम खराब करता है तो अपने का हो जाएगा, तो बीवी शुरू कर देगी, बीवी होगी तो बाप कर देगा। जी। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी हैं, Yeah, बहरहाल but with the passage of time ठीक हो हाँ जी, जाएगी। अनफॉर्चुनेटली, बट लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव टू टेक सम स्टेप्स Yeah, टू इंश्योर कि हमारा जो है ना, एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, जी, जी, खूबसूरत मुल्क है, इतने अच्छे लोग, बहुत प्यारी, इतनी अच्छी सोसाइटी है। जी, आप तो ऑब्वियसली ना आप इसमें कोई चीज ना रोक सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते जी। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, उनको चाहिए कि प्रॉपर कानून जो है ना बनाए और प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करें, जी जी व्हेन दे ब्रिंग। अगर मैं मीटिंग तो बड़ी की है सबसे, जी। जितने भी हैं, लेकिन वो स्वाद यही होता है कि अच्छा करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू डू, वो तो इसी तरह से चल रहा है। बहरहाल अब ये है कि इतना अच्छी कंट्री, मतलब आप लोग इतने पढ़े लिखे, सब लोग पढ़े लिखे यहाँ पे आए, तो वो उनको जो होता है इतनी बड़ी बड़ी, मैं एग्जैक्टली इंजीनियर था, कुछ जी। अच्छी पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आए, इसलिए कि कोई अच्छी लाइफ जी। गुजारें। और जब ये चीज़ें देखते हैं थोड़ी तकलीफ होती है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हुआ। तो आलम भाई, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। आप इमिग्रेशन का भी कुछ करते हैं? एब्सोल्युटली जी। सो वो मेन चीज़ है। आलम लॉ चेंबर के अंदर, ये जो हमारा चेंबर है, जी जी we have lawyers, personal injury के बारे में जी, जो जी। हमारी स्पेशलाइजेशन अभी है, रियल एस्टेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर, जी जी। तो हर तरह के लीगल मामले के लिए आपके पास अंडर वन रूफ all kind of lawyers are available. Oh, thank you so much, because people are very much anxious to know, जी। especially for the immigration, especially for Pakistan. जी। क्योंकि मैंने वहाँ भी काफी वही नो तो पूछते रहते हैं। मैंने कहा मतलब आपसे मुलाकात होगी। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू Absolutely. सो So मच, pleasure बड़ा अच्छा meeting लगा, you. बड़ा अच्छा Thank लगा। you. इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। इसको थोड़ा सा